Students, we have this coil you can see here, and this is a current flowing through it, and this current will be changing current. As I told you, in the self inductance case, definitely you are going to have changing current, and that produces a changing magnetic field, and that changing magnetic field linked with this coil generates an EMF in opposite direction of the change. Clear? So here this you already know this, because of this solenoid you get a magnetic field mu naught Ni. Please see the previous video of the solenoid, you will get this expression. Okay? So we have to find out the self inductance value for this inductor. So this flux linked with the one turn is BA. यदि एक सिंगल टर्न की हम बात करें तो एक सिंगल टर्न के कारण कितना हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, म्यू नॉट Ni. Clear? And this is area. This is area of cross section. All right. So with this flux we want to find out the flux limit, all the number of turns, जितने भी n numbers हैं. So that will be phi equals to mu naught Ni A into capital N. इतना क्लियर हुआ? जब ये इसकी वैल्यू बराबर हो गया तो हम एक चीज और बता दें आपको कि this is n is the total turns, but if you want to find out this in total in this length L, how many number of turns, we will talk about the number density, है ना? Number density क्या होता है? That is number of turns per unit length. तो this n की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? n into L. So let me write this. This will be equals to phi is equals to mu naught n square. n square होता है क्योंकि n l लिख दिया है, n square I A into L. इतना क्लियर हुआ मामला? तो आप देखो, आपने फाई निकाल लिया है कि जो फाई जो लिंक हो रहा है इस कॉइल से, that is this for this whole number of turns, all number of turns, because you have got the expression in the terms of number density. All right. So अब हमको निकालना क्या है? We want to find out the self inductance value, and we know this formula in the previous video where phi equals to Li. यदि आपको phi पता है तो you can easily find out the value of L, that is phi is equals to this mu naught n square I A into L divided by this I. Clear? So when this I is going to cancel out, so you are getting a value that is mu naught n square A into L. अब आप और एक चीज इसको और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो. Do not confuse with this L. This length is for this. चलो आप इच्छा है, लेकिन आप ऐसे लिखो, लेकिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये L किसका है? Length of the coil, and this L is the inductance, है ना? आपका L ये inductance है. आप नोटेशन लेंथ का क्या चेंज करोगे? इसको स्मॉल L और इसको कैपिटल L सपोज कर सकते हो, ठीक है? So this is a final expression for this L value, that is inductance value, self inductance value. All right. So self inductance value can also be written in this fashion: mu naught. This is mu naught n की जगह में क्या लिख दो? n by L. तो इसको n square A डिवाइड बाय L आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्यों ये लेंथ है, एक नीचे L लेंथ स्क्वायर आएगा तो लेंथ से लेंथ कैंसिल. दिस इज लेंथ and this is inductance. So when you increase this length, your inductance is going to, self inductance is going to decrease. Clear? और number of turns से यदि बढ़ाओगे आप, number of turns बढ़ाते जाओगे तो देखिए आप n square, L is directly proportional to n square, 4 times हो जाएगा. Clear? यदि आप 2 बढ़ा रहे हो turns तो that is inductance is 4 times. Clear? So this is we have got this self inductance value. Clear for this inductor. We have talked about the self inductance. Now the other case, that is mutual inductance. In this case we can have these two coils. If one coil is connected with the source battery and the other one is hasn't been connected, and it has been connected with the galvanometer to see any kind of current in that coil. Alright, so if this is the source and providing it a current in this direction from positive to negative, so this is changing current. Alright,
I already told you this thing. This is the very key point, that when there is a change in the current, there will change in the magnetic flux lines. Clear? If there is change in the magnetic field lines, there will be an induced EMF, and because of that induced EMF, there will be a current. Clear? So because of this current, there is a magnetic field around it, and this magnetic field lines will cross this second coil nearby it. यदि इसके बगल में आप किसी दूसरी कॉइल को आप रख दोगे, तो इसमें जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, इसके कारण they will pass through it, and you can see that these magnetic field lines are somewhat different from this, है ना? तो यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ लाइंस इससे पास होंगी, कुछ लाइंस पास नहीं होंगी. So there is a change in the magnetic field lines over here. So because of this change in the flux in this second coil, there is an induced EMF, है ना? So there is an induced EMF, and because of that induced EMF, there will be a current, according to the Faraday's law. So there will that induced current. If there will be any induced current, there definitely this galvanometer will show you, any kind of deflection. So we find such kind of deflections. All right. So here in this case, we are getting current in second. We are inducing magnetic field lines in the second because of this first one. So this is a mutual relationship between these two. So that's why we have to find out the mutual inductance in this case. There can be so many kind of arrangement of these two coils. ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉइल, आपका पहला कॉइल कुछ इस तरीके से था, आपने क्या किया, इसको दूसरी सेकेंडरी कॉइल से पैक कर दिया. तो इस केस में सबसे जो सॉलिड कपलिंग होती है वो इस तरीके की होती है कि आपकी पहली जो कॉइल C1 है, आपने उसको C2 से, है ना, उसको C2 वाली कॉइल से लपेट दिया है. तो जो भी मैग्नेटिक, सपोज करिए करंट हमारी पहली वाली कॉइल से फ्लो हो रहा था, वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे अटैच हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा वो किससे अटैच हो जाएगा, दूसरी कॉइल से. So you will get 100% of the magnetic field lines attached with the secondary coil. समझ में आ रहा है आपको? तो you can have, this is the best coupling, and there can be other ways of coupling. This is also a coupling, but here you will not get so much of the mutual inductance. Some magnetic field lines will pass through it, and some of them will not pass through it. ऐसा भी हो सकता है कि आपका इस तरीके से हो और आपने कॉइल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर दिया, तो इस केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी इधर से निकल गई. You will not get any kind of magnetic field lines in the secondary coil. Definitely there will not be any kind of flux change, so you will not get any kind of induced EMF and hence current. तो आपको करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा. क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई. So there maybe can be so many kind of couplings of these two coils. So you will get a term, a coupling constant for the different cases. In this case, you will get a maximum coupling constant value because 100% of the flux is linked with the secondary coil. But in this case, some of the 50% or 40% of the field lines are passing through the secondary coil. And other case when we talked about, there was no field lines passing through that. So there will be different constant values for these kind of inductors attached, placed nearby each other. So if we define a mutual induction, जो मैंने अभी समझाया उसी को यदि भाषा में लिखना चाहो, लैंग्वेज में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? म्यूचुअल इंडक्शन इज अ phenomenon in which flux linked with the one coil varies according to the current changes, है ना, in the coil in its proximity. अब देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए कि यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं इसमें, तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, और जब इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ तो उस करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना. तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा that will also be in the opposite direction to this magnetic field lines. एक बात ध्यान रखिएगा एक चीज, है ना. So current changes in coil in its proximity. तो इसमें आपको करंट चेंज मिलेगा क्योंकि EMF आपका इसमें जनरेट हुआ है. सिंपल फंडा ये समझ लीजिए आप, ठीक है. और उसके बाद due to this variation of the current in the coil 1, flux linked with the coil 2 also varies. यदि आप सपोज करिए पहली कॉइल में आपने करंट को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हुई इससे, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई तो इससे भी लिंक्ड हो जाएंगी, तो उससे आपको फ्लक्स चेंज होने के कारण आपको इंड्यूस्ड EMF मिलेगा दूसरी कॉइल में. एंड इफ दिस सर्किट इज कंप्लीट, और यदि सर्किट आपका कंप्लीट है तो आपको करंट मिलने लगेगा. यदि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो तो क्या मिलेगा? EMF, आपको सिर्फ EMF मिलेगा. यदि आपका सर्किट कंप्लीट है तो आपका उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस.
So let me write in the mathematical terms. If this is the 5 to 1 flux linked with the second due to first one. समझ में आ रहा है? इसको ऐसा लिखते हैं, और ये जो आपका ये वाला जो कॉइल है इससे म्यू नॉट Ni मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और 5 जो इससे लिंक्ड हुआ दैट इज Nba. क्लियर? So if this is the induced EMF formula minus d phi by dt, so this phi can be written, phi किससे लिंक हो रहा है? दूसरी वाली कॉइल से. तो magnetic flux linked with the secondary coil because of the first one is directly proportional to current in the I1. यदि करंट जो इसमें I1 में है यदि कोई चेंज हो रही है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हो रही है तो वो लिंक हो गया दूसरे से. तो आपका ये जो कुछ भी इसमें लिंक हो रहा है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द करंट इन I1. जितना ज्यादा करंट दोगे इतना कम करंट दोगे उसके हिसाब से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक होंगे, है ना. सो आप कितना समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे दो कॉइल्स हैं तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस नहीं आएगा. सेल्फ इंडक्टेंस में सिंगल कॉइल होती है. क्लियर? यहाँ पे दो कॉइल्स हैं तो यू विल हैव दिस म्यूचुअल इंडक्शन because its influence because of its magnetic field linking with this other and creating an EMF in it and hence current. So this 5 to 1 linked with the secondary coil is equals to M21. M21 क्या है? Mutual inductance in second due to first one, that is I and I1. So आप mutual inductance निकाल सकते हो कितना इंडक्शन होगा M21 की कांस्टेंट की वैल्यू, है ना. This M21 can vary with the change in the flux lines. मैंने जैसे तीन केसेस बताए थे ना, ये वाला केस, एक ये वाला केस और एक यहाँ पे आपका केस बताया. तो इन केसेस में this M21 वैल्यू will be different for the different cases. So ये क्योंकि F21 इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम होगा. इस केस में आपका बीच वाला कंडीशन है, और इसके बाद जो ये वाली कंडीशन मैंने बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं होगा. तो दिस इज द थर्ड कंडीशन. यहाँ पे आपको कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं मिलेगा. इस केस में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा लेकिन लेस मिलेगा, तो इस केस में ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा. तो दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू वेरीज फॉर द डिफरेंट केसेस. We will derive an expression for we will have a derivation for this to get an expression that how can we increase or decrease this mutual inductance value, है ना. We will solve by the derivation and we will come to the point. Right? So this is all about the mutual inductance. Students, we talked about the mutual inductance. Basic concepts of this we have already studied. And if this is the C1 coil carrying current I, है ना, I1 current, and this is your CT coil has been, है ना, wrapped into this. So आपको मैंने पहले बताया कि जब किसी भी फर्स्ट कंडक्टर या फिर किसी फर्स्ट इंडक्टर में आपका यदि करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. चेंजिंग करंट गिव्स यू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट कॉजेस अ करंट. ऑलराइट, तो इतना आपको फंडा समझ में आ गया है ना. तो आप देखिए फर्स्ट जो कॉइल है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी? म्यू नॉट N1 I1. यू नो द केस फॉर द सोलेनॉइड. फ्लक्स कितना लिंक होगा? जितना पहला वाला प्रोड्यूस करेगा उतना ही तो दूसरे वाले के साथ लिंक होगा, है ना. तो दिस इज द केस व्हेन ईच टर्न ऑफ द कॉइल N2, इतना एक टर्न के साथ कितना लिंक होगा फ्लक्स? दैट इज B1 किसका? पहली वाली कॉइल का, और एरिया किसका? दूसरे वाले का. लिंक किसके साथ होगा? एरिया के साथ लिंक होगा ना. फ्लक्स किसका है? पहले वाली कॉइल का. लिंक किससे हो रहा है? दूसरे वाली कॉइल से. क्लियर? सो B1 A2. अब एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं, यदि आपका सपोज करिए ये ठीक है और इसके अंदर आपका करंट इसमें फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जनरेट हो रही हैं, तो आपको यदि इसमें फिट किया आपने एक सिलेंडर में एक छोटा सा ये रॉड फिट किया इसमें, सपोज करिए कैसे एग्जांपल दूं, तो ये आपने एक बड़ा सा बॉक्स था उसमें आपने ये पेन डाला. इस पेन में इसमें कॉइल जो है वो C1 है सपोज करिए, और इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होगी वो इसी रीजन में यहां तक तो कवर कर पाएंगे ना. अब है ना, ये पूरे एरिया को कंसीडर अपन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हो रही है इससे जनरेट हो रही है, तो इतना ही एरिया हमको लेना पड़ेगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिससे लिंक होगा. ठीक है, इतना आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हो और सोच रहे हो आपके इस पूरे एरिया के साथ लिंक हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? तो इतना यदि एरिया में A1 एरिया में आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो दैट विल लिंक विद द A1 एरिया. वो A2 पूरे एरिया से कन्वर्ट पूरे लिंक नहीं हो सकता. क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा. तो यदि A1
यदि छोटा कॉइल का एरिया A1 है और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं, तो दे विल ओनली लिंक विद द A1 एरिया। A1 क्वांटिटी की जो एरिया है उसी से लिंक होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो B1 A1। अभी हम आगे लिख देंगे इसको, अभी आप इतना समझने के लिए लिखिए कि A2 के साथ लिंक हो गया। क्लियर है? लेकिन लिंक तो A2 के साथ ही हो रहा है, लेकिन एरिया जो है वो किसके बराबर है? जो A1 के बराबर है। जिसके साथ लिंक हो रहा है वो इस A2 एरिया में दूसरे कॉइल का जो A2 एरिया है, ये दूसरे कॉइल का जो A2 एरिया है और ये A1 एरिया है, वो लिंक तो दूसरे से ही हो रहा है ना, लेकिन एरिया कितना लिंक हो रहा है? A1 के बराबर लिंक हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? लिंक दूसरे से ही हो रहा है, दूसरे कॉइल से लिंक हो रहा है। क्लियर बात? सो द टोटल फ्लक्स लिंक विद द Φ21 कितना हो जाएगा? आप Φ21 क्या हो जाएगा? दूसरे से लिंक हो रहा है, उसका कुछ लेंथ होगा L। कितना लिंक हो रहा है? इतना। इतना समझ आया? अब यहां पे आप लिख सकते हो कि ये जो लिंक हो रहा है किसके बराबर होगा? A2 में लिंक हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा? A1 के बराबर होगा। इतने एरिया में जितना मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है उतना ही दूसरे कॉइल के साथ लिंक होगा। इतना बात क्लियर? तो अब आप आगे समझिए कि जो ये B1 की वैल्यू है, यहां पहले वाले से लाके रख दो यहां पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ B1। सो व्हाट विल यू गेट? Φ21 is equals to, Φ21 की वैल्यू क्या मिलेगी? दिस इज N2 L म्यू नॉट N1 I1, म्यू नॉट N1 I1 इंटू A1। इतना क्लियर? A1 क्यों लिखा है समझ में आ गया आपको? क्योंकि इतना ही एरिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो उतने ही एरिया के साथ दूसरे के साथ वो लिंक होगा। क्लियर? तो ये दैट्स व्हाई वी हैव चोजन दिस A1 इंस्टेड ऑफ A2। क्लियर? सो इतना तो आपको समझ आ गया। अब मैग्नेटिक इंडक्शन का अभी हमने फॉर्मूला जनरेट किया था, याद आ रहा है कुछ आपको? M21 linked with the second due to 1 is equals to Φ21 flux linked with the second due to the 1 is divided by current I1। इतना याद आया? तो अब Φ21 आपको मिल गया है, so you just put the value over here। हाँ, चलो नीचे लिख देते हैं। तो M21 क्या मिलेगा? M21 is equals to this N2 N1, चलो लिखते हैं यहाँ पर, इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। म्यू1 म्यू नॉट N1 N2 N1 N2 L I A1 डिवाइड बाय दिस I1। तो I1 से I1 कैंसिल। इतना क्लियर? तो I1 से I1 यदि कैंसिल हो गया तो मिला क्या दोस्तों? दैट इज म्यू नॉट N1 N2 L A1। इतना क्लियर? So if this is a current density, this is the number density of first and second. So if we consider that there are N1 number of turns in the first one and N2 number of turns in second one, so we can solve it and we can write in this fashion: mu naught capital N1 N2 A1 डिवाइड बाय L। एक से एक L से एक L दूसरा कैंसिल हो गया, ठीक है? तो आपको म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L मिला। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। इसको एक फाइनल एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। M21 you have got is म्यू नॉट N1 N2 A1 डिवाइड बाय दिस L। आपका लेंथ यदि बढ़ गया किसी का भी, तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा। क्लियर? और यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गई दोनों की, किसी के भी, है ना, तो उससे क्या होगा? आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़नी चाहिए लेकिन लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, है ना? तो विद इन द लिमिटेड लेंथ, इफ यू कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, देन यू विल हैव more and more mutual inductance।